Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about continuous tenses, and in continuous tenses we shall discuss here past continuous tense. In previous video I taught you about present continuous tense, and this video we shall discuss about past continuous tense. This tense is also known as past progressive tense, and here we will discuss about forms and uses. Let's start. First, how to identify past continuous tense. ये वीडियो हम देख रहे हैं कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं हिंदी सेंटेंसेस में. तो दैट इज रहा था, रही थी, रहे थे, इट इज कम एट द एंड इन हिंदी सेंटेंसेस. जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं वह हमारे बेसिकली एंड होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा पर. और इसके एग्जांपल्स जो हैं, मैं स्कूल से आ रहा था, आई वॉज कमिंग फ्राम स्कूल. रोहन अपना पाठ याद कर रहा था. रोहन वॉज लर्निंग हिज लेसन. वे फिल्म देख रहे थे. दे वर वॉचिंग मूवी. एंड बच्चे खाना खा रहे थे. बॉयज वर ईटिंग फूड. तो इन सेंटेंसेस में देख रहे थे रहा था, रहे थे एटसेट्रा आ रहा है. तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के एग्जाम्पल हैं. अब हम इसमें स्टडी करेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सा मेन वर्ब यूज करते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. First rule is here, helping verb was with singular number and verb with plural number is used. जो है कि was हम सिंगुलर नंबर के साथ और वर्ब प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं, और I के साथ भी हम was ही यूज करते हैं. I here is considered as a singular number, and present participle form of verb or verb ing is used as main verb. यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वर्ब ing फॉर्म या इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, ये यूज करते हैं. अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के? तो सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब ing देन अदर वर्ड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जैसे एग्जांपल हमने लिखा, अर्नव वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल. अर्नव स्कूल से आ रहा था. अर्नव वाज कमिंग. हियर अर्नव इज सिंगुलर नंबर, दैट्स व्हाई वी यूज हियर वाज एंड वर्ब ing फॉर्म कमिंग एंड देन अदर वर्ड्स. अर्नव वाज कमिंग फ्रॉम स्कूल. आई वाज गोइंग देयर. हियर आई and I is considered here singular number. I told you earlier. Was verb ing form going, and there I was going there. Boys were playing in the garden. Boys plural number, we use were with plural number and verb ing form playing. So boys were playing in the garden and they were working in the fields. They third person common gender plural number pronoun, and we use verb with they and verb ing form here we use in the fields other words. They were working in the fields. So these are the different examples of past continuous tense in affirmative sentences. And what will be in negative sentences, let us see. And here negative sentences, subject was verb plus not plus verb ing and other words. If we see the structures carefully, then we have put negative word not in between was verb and verb ing. तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट वर्ड प्लेस कर देते हैं और हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है. लाइक एग्जांपल, अर्नव वाज नॉट कमिंग फ्रॉम स्कूल. हियर was helping verb and coming main verb, we put here negative word not. अर्नव स्कूल से नहीं आ रहा था. I was not going there. Here was helping verb and going main verb, we put here negative word not, and it became negative sentence. Arnav was not going, sorry, I was not going there. Boys were not playing in the garden. In the same way were and playing, in mid between we have placed not, and they were not working in the field. So they were helping verb and working main verb, we put here not. So these are the different examples of negative sentences in past continuous tense. Next, in interrogative sentences, I have told you earlier, interrogative sentences are of two types: helping verb that begins with helping verb and that begins with question verb. Question word like that begins with helping verb is also known as yes no type question or non-reasonable interrogative question, and that begins with question word is also known as reasonable interrogative question or WH type questions.
तो जो हमारा इंट्रोगेटिव नॉन रीजनेबल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी देन अदर वर्ड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो यह रीजनेबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमारा यही है, बस हम इसके पहले ये क्वेश्चन वर्ड प्लेस कर देते हैं। और अगर इस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें अफर्मेटिव सेंटेंस से तो वी विल सी दैट कि हियर द हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट प्लेसेस हैज बीन इंटरचेंज्ड। ये इसके प्लेस क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं और फुल स्टॉप की जगह हमारा क्वेश्चन मार्क यूज हो जाता है। इससे ये जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो these are the structures of both interrogative non-reasonable and interrogative reasonable sentences, and here are the some examples like was Arnav coming from school question mark, क्या अर्नव स्कूल से आ रहा था question mark put, and here were they going there, क्या वे वहाँ जा रहे थे। Here we have started it with helping verb, and these are the examples of non-reasonable interrogative sentences, and here why were boys playing in the garden, what was he doing, why here जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वर्ड्स हैं एंड व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये इसके जो है कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस जो होता है ये हमारा 5 बेसिक रूल तरीके से यूज होता है। ये फर्स्ट यूजेस है टेम्पोररी एक्शन इन प्रोग्रेस सम टाइम इन द पास्ट। हम जब पास्ट में कोई एक्शन जब कंटिन्यू हो रहा था उसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आई वॉज लिविंग अब्रॉड इन 2017, 2017 में मैं बाहर रह रहा था। दे वर वॉचिंग द न्यूज एट दैट टाइम, वो इस समय न्यूज देख रहे थे। वी ऑफन यूज ऑल टू एम्फसाइज कंटिन्यूटी, हम ऑल का यूज करते हैं कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। इट वॉज रेनिंग ऑल नाइट या बॉयज वर स्लीपिंग ऑल डे। नेक्स्ट यूजेस इज जो एक्शन हमारा जो है कि पहले ही कंप्लीट हो चल रहा होता उसी में कोई शार्टर एक्शन जो है इंटरप्ट करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे जस्ट एज या व्हेन आई वाज लिविंग द फोन रैंग, ये हमारा एक्शन चल रहा था और इसी बीच में यह एक्शन हमारा क्या हुआ, इंटरप्ट किया। तो जो एक्शन पहले चल रहा था वह पास्ट कंटिन्यूअस में और जो एक्शन इंटरप्ट किया वह हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वैसे व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस। और इसी तरह से ये हमारा जो बिगिन होता है वह व्हेन एज जस्ट एज या व्हाइल से बिगिन होता है हमारा मेन क्लॉज, लेकिन जो शॉर्ट एक्शन इंट्रोड्यूस होता है वह व्हेन से होता है। जैसे वी वर हैविंग सपर व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। तो यह देखिए व्हेन से शॉर्टर एक्शन व्हेन से बिगिन हुआ। ऐसे ही हमारा जो है कि यह यूज होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसका यूजेस है क्या, एक्शन इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट। जब पास्ट में हमारे एक टाइम पर दो एक्शन कंटिन्यू होते हैं तो भी दोनों एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। लाइक व्हाइल आई वाज रीडिंग जॉन वाज प्लेइंग पियानो, ये एक्शन दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं, मैं पढ़ रहा था और जबकि जॉन पियानो प्ले कर रहा था। बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क, जब बॉयज पार्क में खेल रहे थे। मदर वाज कुकिंग फूड, मदर भोजन बना रही थी। रिपीटेड एक्शन विथ ऑलवेज, ऑलवेज के साथ हम रिपीटेड एक्शंस को दिखाने के लिए वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। व्हेन आई वर्कड हियर, जब मैं यहाँ काम करता था। आई वाज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक, मैं हमेशा गलतियाँ करता रहता था। व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली आई वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन मेट्रो, जब मैं दिल्ली में रहता था तो मैं प्रायः मेट्रो से हमेशा ट्रैवलिंग किया करता था। और पोलाइट इंक्वायरीज के लिए भी हम यूज करते हैं आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ यू कुड गिव मी अ लिफ्ट, मैं वंडर कर रहा था कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे या नहीं। तो ये पोलाइट इंक्वायरीज के लिए भी हमारा यूजेस होता है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस टेंस will be sent in a WhatsApp group, and from your book also the exercises would be done. These are all about past continuous tense. Thank you.